Namaste everyone and welcome back to Kaswani. Most of us think of sports as something we play or watch, but behind every Indian athlete who walks into the Olympic Stadium, behind every medal that makes us jump off our sofas and cheer, there are people working tirelessly behind the scenes to make those moments possible. My guest today is one of those people. For more than 35 years, he has played an important role in the Indian sport, including serving as Secretary General of the Indian Olympic Association for 8 years. For fencing, he has been a true champion, helping secure better opportunities and international exposure for Indian fencers. In 2025, he made history. He became the first Indian ever to be elected Secretary General of the Fencing Confederation of Asia, representing 46 countries. Today, he continues to serve as Secretary General of the Fencing Association of India, second Vice President of Commonwealth Fencing Federation, and a member of the Olympic Council of Asia's Cultural Community. It is pleasure to welcome a leader who has dedicated his life to the growth of sports and fencing in India. Please join me in welcoming Mr. Rajiv Mehta, sir. Thank you very much. Welcome to you in my office. Good to see you when I see you in the fencing podium, and now you are here in my office. So before I would like to thank you for saying yes to me because I'm just 11 years old. So now I'll be doing my questions. Yes. तो सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था स्कूल में और आपको कभी लगा था कि आप स्पोर्ट्स के एरिया या लाइक स्पोर्ट्स में काम करने में एंड जाऊंगे? जब मैं पढ़ता था अपने टाइम में, I was a very good player in football and cricket. Yeah. And we have a very good subject, maths and physics. I was an excellent student in the maths and till the 12th. After that, we have joined the BSc with bio, chemistry and maths. After BSc, we have joined the FSc with the inorganic chemistry. But all the time, we are using the playground, like football and cricket. उस टाइम बहुत मैं फेमस था खेल में. अभी लोग मुझे खेल की वजह से जानते. When I was finished my education in 85, we have started some championship about the cricket, football, swimming. The time I was came to the administration role. My state was on that time is Uttar Pradesh, UP, and I was the president of UP Women's Cricket Association for the 10 years. Oh, wow. So I have used to organize some championship in my city and my state and all the UP also. After that, in 2000, there was a 3 state has created by the Indian government. One name is Uttarakhand, Chhattisgarh, and happened. In 2001, I became a president of Uttarakhand Olympic Association, and I was president till 17 years. And I have run the football and 42 games in Uttarakhand. So एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया. उसके बाद मैंने काफ़ी चैंपियनशिप कराई और करते करते 2014 में मैं दिल्ली आ गया. 2014 में I become a Secretary General of Indian Olympic Association. That time I was running from Kho Federation of India. I have worked with the Luge Federation of India. That's what the winter sports. Many sports federation we have worked in India. And my period is 2014 to 2022 in Indian Olympic Association. We have worked 8 years as a Secretary General of Indian Olympic Association. और उसके बाद 2017 में I have joined the fencing as a president. So till now we are running the fencing and we have joined the 1 year back Fencing Association of Asia as a Secretary General. So now we are going to organize the Asian Championship in Delhi from 18 June to 24 June. मुझे पहली बात तो बहुत अच्छा लगा सुन के. हाँ. Very good. और आज जैसे आपने कहा आप फुटबॉल और क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे और आपने अपनी स्टेट और यूनिवर्सिटी को भी प्रेजेंट करा. तो फिर आप केमिस्ट्री लैब से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक कैसे पहुंच गया?
मतलब इतना डिफरेंट है दोनों? देखिए ऐसा है, जब आप खेलते हो ना, हाँ। जो बच्चा अच्छा खेलता है वो पढ़ाई में भी नंबर 1 होता है, और जब आप खेलना छोड़ देंगे तो आप पढ़ाई में भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते, आपकी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, आप मेडिकल अनफिट रहेंगे। तो मेरा कहना ये है कि जो आदमी अपनी लाइफ को कंफर्टेबल चाहता है हाँ। उसको कम से कम 1-1.5 घंटा खेलना चाहिए। तो हम शुरू से खेलते थे हाँ। और खेलते खेलते हम पढ़ाई भी करते गए और पढ़ाई में भी अच्छे नंबर आते गए, और आज पढ़ाई करी भी हमारे काम आ रही है। आपने इतने सारे स्पोर्ट्स खेले, मतलब और आपने ऑर्गेनाइज इतने स्पोर्ट्स करे, तो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा? देखिए हर गेम का नियम अलग अलग है, हर रूल रेगुलेशन अलग है, उसके नियम कानून अलग है, आईयूसी चार्टर अलग है, ओसी का चार्टर अलग है, कैसे गेम को खेलना है उसके नियम बिल्कुल ही अलग है। और हर गेम बहुत इंटरेस्टेड है, चाहे आप बॉलिंग ले लें, आप टेबल टेनिस ले लें, हॉकी ले लें। मैंने हॉकी भी बनाई, हॉकी इंडिया हमने बनाई थी 2009 में, उससे पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन थी, इंडियन हॉकी फेडरेशन में मैंने काम किया ज्वाइन सेक्रेटरी, और उसके बाद 2009 में हॉकी इंडिया बन गई। तो जितने भी गेम है उनका सिस्टम अलग अलग है, और बच्चों की हॉबी है, कौन से बच्चों को कौन सा गेम पसंद आता है। जैसे आप फेंसिंग खेल लें, मैं अगर आपसे पूछूं हॉकी क्यों नहीं खेली है, आप तो उसके बाद आपको कोई जवाब नहीं है। तो अपना अपना शौक है, जिससे बच्चे को जैसा 40 करोड़ की पॉपुलेशन हो, कोई भी आदमी कहीं भी खेल सकता है। वो एक फेंसिंग ही बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और वो नया गेम है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं इसको उठाने की। जो आपका रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो था आपने अभी भी आईसीएल करा था, अभी हमने अनाउंस किया है। यस। हाँ, तो फिर इंडियन फेंसिंग लीग, तो उसका पर्पस क्या है और आपने आपका आइडिया कैसे क्यों करा? उसका पर्पस हमारा ये है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं इंडिया के, उनको प्रैक्टिस का टाइम मिले, उनको रैंकिंग मिले और उनको पैसा भी मिले। जब तक फाइनेंशियली खिलाड़ी सपोर्ट नहीं मिलेगा उसको, खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। उसको प्रैक्टिस के लिए पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा तो खेलेगा तो हमारी कंट्री को नाम मिलेगा, और अच्छे बच्चे जो आएंगे उसमें हो सकता है कुछ अच्छे बच्चे आए और मेडल मिल जाए कंट्री को। तो आपने स्पोर्ट्स के दोनों साइड देखे हुए हैं, आपने खुद एथलीट भी बने और आपने मैनेज भी कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो फिर ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा है? और दोनों चैलेंजिंग है बेटा। जब आप खेलते हो तो आपको मेडल चाहिए, टॉप पोस्ट चाहिए, और जब एडमिनिस्ट्रेशन में आते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी आप उसे डिलीवर कर सकते हो। जब आपको काम की नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे काम करोगे? तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस अबाउट द ट्रेडिशन। एंड हैज बीइंग अ प्लेयर, उसका जो एक्सपीरियंस मिला आपको एडमिनिस्ट्रेशन में मदद कर रहा है, बिकॉज आपने कुछ प्रॉब्लम फेस करे होंगे एज अ प्लेयर, तो आप जब आपको जब पावर मिली तो आप उसको कर पा रहे थे क्या? यानी हम बहुत सक्सेसफुल कर रहे हैं। आप बताओ ना, आप ट्रेडिशन में काम कर रहे हो, खेल रहे हो, तो आपको बुरा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी बहुत अच्छा लग रहा है। नेगेटिव उसमें है बिल्कुल भी नहीं। हमने फेंसिंग में भी आगे बहुत इंप्रूव करने की कोशिश करी है। हमने यही कैमरा यूज करना चालू कर दिया, जिसमें जो थोड़ा बहुत करेक्शन था रेफरी की तरफ से वो बंद हो गया। हर चीज हमने ऑनलाइन कर दी, सर्टिफिकेट हमारे ऑनलाइन है, जो चीजें थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते थे करिए। डे बाय डे फेंसिंग काफी इम्प्रूव कर रहे हैं। फेंसिंग एक स्वॉर्ड फाइटिंग गेम है, राइट? तो फिर जब लोग सब सुनते हैं तो बोलते हैं अरे वाह इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो फिर वो ज्यादा फेमस क्यों नहीं है इंडिया में? और हमें कब फेंसिंग लाइव ब्रॉडकास्ट करने को एक तरीके जैसे होता है वैसे कब मिलेगा? अभी हम जो ये चैंपियनशिप करने जा रहे हैं इसको लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फेंसिंग टीवी में, और ये आप फेंसिंग टीवी में देखोगे। और अभी हम यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट कर रहे हैं, अपना टेलीफोन में वेबसाइट स्टार्ट हो गई है हमारी आज से। फेंसिंग का आप मोबाइल में डाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और फेंसिंग में आप हर चीज अपने मोबाइल में देख लेंगे। आज स्टार्ट कर लिया, 2-3 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपका। सर आपने बहुत मेहनत करी फेंसिंग के लिए, सपोर्ट और फंडिंग के लिए, तो ऐसा कोई मोमेंट था कि वो आपको लगा कि मुझे गिव अप करने का मन कर रहा है या और नहीं हो रहा मुझसे? तो फिर नहीं बेटा, देखो लाइफ जो है ना एक स्ट्रगल है, और लाइफ जो है चैलेंजिंग है हर चीज में। आप कुछ भी करोगे, पढ़ोगे, खेलोगे या बिजनेस करोगे, हर चीज में चैलेंज है, तो आपको भागना नहीं है, उसको चैलेंज को स्वीकार करना है और चैलेंज के साथ आगे बढ़ना है। ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको लगता है जो सारे स्पोर्ट्स लीडर के पास होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट? देखिए आजकल जो लॉज हैं वो बदल रहे हैं, स्पोर्ट्स लॉज बदल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, हमारा कंट्री का स्पोर्ट्स कोड बदल रहा है। जितना भी जो भी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है उनको अपने आप को अपडेट रखना है कि कौन सा लॉ स्टार्ट हुआ है, कौन सा लॉ अभी पास हुआ है पार्लियामेंट से, आईयूसी चार्टर क्या कहता है, ओसीए चार्टर क्या कहता है।
उनका कंपैरिजन करना है। जब तक एडमिनिस्ट्रेटर अपडेट नहीं हुआ तब तक फेडरेशन नहीं चल सकती। अगर if a young kid like me wants to get into sports administration, no प्लेयर की तरह नहीं मैनेज करना है, तो फिर मुझे अभी से क्या करना चाहिए? आपको पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी है। दोनों चीजें लाइफ में बहुत काम आती है। अगर आपकी पढ़ाई नहीं है तो भी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप पढ़ाई और खेलना दो तरफ ध्यान रखो, इसके अलावा तीसरा काम आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ओके। आपने ओलंपिक्स भी अटेंड करा हुआ है, आपने कॉमनवेल्थ भी अटेंड करा हुआ है, आपने एशियन गेम्स भी अटेंड करे हुए हैं, तो फिर आपको सबसे बड़ा गूज़बम्प्स किस में मिले? मतलब ओलंपिक में। क्यों? ओलंपिक इज द नंबर 1 गेम इन वर्ल्ड। उसका जो रिजल्ट है वो वही काउंट करता है। बाकी जो कॉमनवेल्थ है इज नॉट एफिलिएटेड विद द आईओसी क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। Oh. और ओसीए से एफिलिएटेड है, बट ये कॉमनवेल्थ गेम्स इज नॉट एफिलिएटेड विद द आईओसी। और ओसीए के साथ अपना एक महत्व है और कॉमनवेल्थ का अपना। You started giving prize money to Indian athletes who won medals at the Olympic and Commonwealth Games. Before that, उससे पहले प्राइज नहीं मिलता था, लाइक तो वो पॉसिबल कैसे फेयर? मैंने 2016 में जब इंडियन ओलंपिक सेक्रेटरी बना तो मैंने स्पॉन्सरशिप स्टार्ट किया, स्पॉन्सरशिप लेना स्टार्ट किया। जब मेरे पास स्पॉन्सरशिप आई तो मैंने फिर खिलाड़ियों को देना चालू किया। अच्छा। और जाने से पहले ही अनाउंस करता था कि अगर आप ये मेडल जीतोगे तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो और जो मेडल जीत कर आए वो पैसा दिया। हमने दिन जैसे आते थे हम तभी भुगतान रखते थे और मैंने पैसा। आपको मतलब आपने क्या क्या स्टेप्स लिए उसको चेंज करने के? मतलब आप समझ आ गया कि आपने स्पॉन्सरशिप ली, बट आपने जो कमेटी थी या जो फेडरेशन की उस टाइम, तो आपने उनसे एक बात करी या क्या? वो सब चीज जब भी हम कुछ करते हैं तो सारी अप्रूवल हमें अपने इसी से लेनी पड़ती है, जनरल से। एवरीथिंग इज अप्रूव्ड। ओके। तो फिर आपने इंटरनेशनल लेवल गेम आपने इंडिया में होस्ट कर रहे हो, अभी कर भी रहे हो आप, तो आपको फीलिंग कैसे आती है? अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। बच्चे देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, और कंट्री में हम जो चीज करा रहे हैं सब फर्स्ट टाइम करा रहे हैं। एशियन चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम हो रही है, इतनी कंट्री फर्स्ट टाइम आ रही है इंडिया में। हम एफसीए की मीटिंग करा रहे हैं, फर्स्ट टाइम करा रहे हैं। भारत मंडपम में स्पोर्ट्स हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। भारत मंडपम कोई बुक कराता ही नहीं है, स्टेडियम में जाता है। तो हमने जो भी ट्राई किया बहुत बढ़िया किया, खेल को बढ़ाने के लिए किया। अगर आपके पास अगर एक सुपर पावर होती इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, तो आप क्या चीज करते हैं? फिर हम जो स्पोर्ट्स कोड है वो हम अपने तरीके से बनाते हैं, जैसे आईओसी का चार्टर है। अच्छा। तो उसमें काफी डिस्कशन है, वो अभी हम ना कहें तो अच्छा है। ठीक है। और मेरे शो का नाम आकाशवाणी है, जिसका मतलब है वॉइस फ्रॉम द स्काई। तो फिर आपके हिसाब से अगर वो एक पीस ऑफ मैसेज एडवाइस होती सारे इंडियन एथलीट्स या स्पोर्ट्स प्लेयर्स की, वो क्या होती? देखिए ऐसा है, जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो प्लेयर्स हैं बहुत फर्क है। हमारा कहना है कि प्रैक्टिस जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है वो हमें रिजल्ट देता है, और रिजल्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो पहले सबसे पहले प्रैक्टिस से पहले आपको देखना है कि वर्ल्ड का स्कोर क्या है, वर्ल्ड में जो खिलाड़ी हमारी कैटेगरी में खेल रहा है उसका क्या टॉप का रेट क्या है, उसका क्या रैंकिंग है। आपसे कंपटीशन अपने से ऊपर वाले से करना है। तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है कि वो उसको लगता है कि मैं अगर किसी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन गया तो मुझे दूसरी कंट्री के लोगों से कंपैरिजन करना है कि उसने कितने कंपटीशन कराए, उसे इंटरनेशनल क्या एक्टिविटीज कराई या नहीं कराई। तो कंपैरिजन करने से ही कंट्री आगे बढ़ती है, भी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है सर, एनी वन मेमोरी यू विल रिमेंबर फॉर लाइफ? अच्छी है इस बारे में, खेलने के बारे में। कुछ जब हम खेलते थे वो दिन बहुत अच्छे थे, खेलने के टाइम में बहुत अच्छा खेलते थे, बहुत नाम था। उस टाइम स्पोर्ट्स फेडरेशन थी नहीं, हम कहाँ खेलते थे। आज तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम जो खेल रहे हो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में खेल रहे हो और एसोसिएशन के अंडर में काम कर रहे हो। तुम्हारा जो सिलेक्शन हो रहा है तुम आगे बढ़ सकते हो। जब हम लोग खेलते थे हमारा लेवल बहुत अच्छा था खेलने का, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में नहीं थी। अच्छा, अब आगे नहीं बढ़ सकते थे, जहाँ थे वही खेलते थे। समझ गए ना मेरी बात? समझ गए? So you are the lucky children. You are playing under the national federation. थैंक यू सो मच, बहुत सीखने को मिला। Wish you all the best, बेटा। थैंक यू। Thank you.